session in the morning, and Dr. Mamta ma'am, she has a good discussion with us regarding the 9 feelings in relationship, that is trust, respect, affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude, and love. And she said that trust is a foundational value and love is a complete value. And there is a need that we have to verify that how many people do we have in our life that we really trust. And it's really a very interesting process, and you can enjoy it when you do it in your life. Trust and respect, you can enjoy it. So I request to Mamta ma'am to please continue the session. Good afternoon, everybody. So it's again a type of encroachment over here on the time of Dr. Weising, and some technical problem is there. And naturally, you know this very well that until and unless harmony is there will be contradiction there. And the same is true with the technology also. You know, if two systems are just contradicting with each other, then naturally two programs are colliding and nothing is working over there. The same is with human being also. So for the sustainable development, we had been talking that you have to take care of the nature, you have to take care of the society, you have to take care of the environment, all these things over there. So until and unless we are quite clear about our role, our aspiration, because who is going to play a key role in this type of uh, development over there? Naturally, human being is there, and if the human being is himself confused, if he doesn't know what to do, then naturally the problem will be there. So that's why this content of human value is rather very much important. It is going to help us in understanding our role. And value, in the beginning I had told you, value is something, one's role in a bigger picture. I had given you the example of the pen. If the pen is not writing properly, if uh, you are not able to just write on the paper whatever you are thinking, if this purpose is not being solved by the pen is useless. The same way human being. And now we are so much confused that we even don't know what is our role. We simply think that it's quite an accident or incident that we have taken birth in this very particular earth, in this beautiful planet over here, and we have to go to school, earn some degrees, and accumulate a little bit of physical facilities, pass it over to our children over there, and then go away. This is not only the role of human being there. You know, we have to, whatever little action we are taking, it is going to affect the whole existence there. You know, but we never think in this direction, and it seems that I am living my life. Your life is also being connected with the other people, and whatever action you are taking, whatever work you are doing, naturally it is going to cooperate with somebody to actualize his dreams, to actualize his aspirations. It can hinder also. In the bigger picture, in the existence itself, where we have 4 orders there, uh, the material order, the pranic order, then the animal order, then human order. You know, in these all 4 orders, we have to play our role over there. So we actually just lead our life in a type of uh, we can say that we are not quite clear, behoshi, that just in the sense that we are unconsciously leading our life there, and we never realize that our role is quite bigger one. So we had discussed about the right understanding,
relationship and physical facility, we have come to know that we have to transform from animal consciousness to human consciousness there, where there is a priority of right understanding over relationship and physical facility there. Then we have come to know, when we just see the expand of our living, at 4 levels we do live, you know, in the as an individual, then as a member of the family, a member of the society, then we have our role to play in nature and existence also. So we have to just recognize our role and then fulfill whatever the aspiration is there. We have come to know, when we started just studying human being, uh, we come to realize that human being is a coexistence of self and body, and the needs are of both are different there. The needs of the self are feelings that we exchange when we come across any other human being and we are in relationship with them. And then the body needs different type of physiochemical things, because it needs to be nurtured, as well as the protection is also needed. For nurturing, you provide food to the body. For protection, you need a house, you need clothes. And for the right utilization also, if you are not utilizing your body properly, then naturally the problem is there. So it happens that when you are taking care of the body, you have to, when you are dealing with the human being, whether you are dealing with yourself, you have to take care of both the needs there. Body has got different needs and the self has got different needs. The needs of the self are being fulfilled by the exchange of the feelings with other human being, and where we live in relationship. When we were discussing this relationship, I told you that naturally we do have a relationship with every unit in existence. And the thing there is that we have to realize, है ना, हमें संबंध देखना है, हम बनाते नहीं है संबंध. There are some relations we are born into. वो family में तो आप, the moment you take birth, so many relations are there. And when you in the neighborhood, we have a different role to play. There are some people that we have to just interact with them. We have to see relationship there, and then we have to exchange feelings there. When we are going to exchange feelings, proper evaluation is needed over there. Until and unless you recognize the feeling, the right feeling there, then you fulfill the feeling, and then you evaluate, and it should just ensure mutual happiness over there. If mutual happiness is not ensured, the problem is there. You have to check your program again, that there could be any problem. And on the taking reference from the natural acceptance, you should correct your program of achieving your goal over there. So 9 values we had discussed over there, and trust is the foundation value there. Trust is that where you just accept other as your relative without any condition. And if you are doing it, then naturally you are not doubting the intention of the other, and you have a belief. So you do feel that you are just not doubting the intention of others. And if the intention is doubted there, then naturally the problem is there. You don't have trust. If trust is not there, then naturally
the problem is that no other value can be recognized at all. Trust is the foundation value, and where you have to uh, just establish all or prepare a platform for other values to nurture over there. So it so happens that whenever we judge ourselves on the basis of the intention, and we judge others on the basis of the competence there. So it is a wrong criteria over there. If I don't doubt my intention, then naturally I should also not doubt the other's intention. And if this unconditional type of relationship is there, then we can exchange other feelings also. So I told you about the 9 feelings. The first was the trust, that is the foundation value, then respect, then affection, then care, guidance, reverence, glory, gratitude, and the ultimate value is love. Love just inculcates all the other values itself. If you love somebody, because we have a popular notion about the love that we find from the movies as well as from the serials, and where the people have a different notion about love. No, but love is a feeling where the person or the human being, he just uh, finds or having a feeling of being related to every unit in the existence there. So it inculcates affection. Affection is that a feeling of accepting others as your relative, and it so happened that it starts with seeing relationship with the other human being there. Then we do care. If you are loving somebody, you do take care of the body of that fellow, you know. And it happens that we just try to nurture, protect, and make arrangement for the right utilization of the body also. So this is care. And then when you are loving somebody, then you take the care of the body as well as you take the care of the self also, because we have come to know that a human being is a coexistence of self and body there. So self is also to be taken care of. And if somebody is loving some person, then he just tries to enhance the competency of that very particular person also. Means guidance is also needed over there. That is called vasalya, that you are making, ensuring the right understanding in the people, those whom you are loving. Then comes the feeling of acceptance of the excellence. If that very particular fellow has done something or have made some achievement in a particular field, then naturally uh, uh, you have a feeling of acceptance of that excellence. You do accept, and then comes the glory. You just have a feeling for because that fellow whom you love, he has just achieved something. You have that feeling of excellence for that very particular fellow. In achieving whatever we have achieved in our life or anybody has achieved in their life, uh, one has to simply see that there are many people, those directly or indirectly are going to help you. So uh, the gratitude comes, and we have the feeling of kratagita or gratitude for all the people, those who have worked for us, those who have provided us unconditional support over there. So love has got all these 9 feelings there. And that's why love is supposed to be a complete value. Foundation value is trust, and it gives a ground to everybody
to reach to love that inculcate all other 8 feelings in itself. So now Dr. Weising is available. He will start working. He will start just taking this very particular discussion to the next level. And now we'll discuss about the society. Over to Weising, sir. Thank you, ma'am. Sorry for the disturbance due to internet connections and all that. We are living in the technological society, so we are right now totally dependent on that. And still, I am saying that it is not moving. Actually, my slides are not moving forward. Yes, it is now moving. Okay, now I can start. So, welcome all the participants. Now, I am going to discuss the session, Understanding Harmony in the Society and Understanding Harmony in Nature. Actually, till now, we have discussed the 2 levels of our living, harmony in human being and harmony in family. And harmony in human being, I discussed in my first lecture yesterday, and in the morning, Dr. Mamta Sharma ma'am discussed about the family. Now I'm going to discuss harmony in society, because we all are the unit of the society. We are the members of the society. So we have to understand what is society, what are the goals in the society, and what are the programs to achieve all the goals in the society, so that we can live in our desirable society. Actually, right now we see that there is a very big chaos in the society. People are doing inhuman behavior with each other. That is why we need to improve the mindset of the people, so that we can improve the living in the society. So this is the 3rd level of living. Now, if we see, what do you mean by society? What do we mean by the society? We saw that the family is the basic unit or building block of human organization. So, जैसा हम लोगों ने पहले बताया कि first of all we have to understand ourselves first as a human being, then we have to understand the family, then we have to go to the society. So when we see the society, what is society? So here we can say that we saw that the family is the basic unit or building block of human organization. So the society is the next larger order from the family. First of all, the basic unit is human being. Second one, the larger order from the human being is his family. And the next larger order from family is the society. So what can be the definition of the society? So it is written over here. Society is composed of many families living together, making collective effort for a common goal. For a common goal, making collective effort for a common goal, not by differing goals or by conflicting goals. यानी कि जब जितने भी लोग हम समाज के सदस्य के रूप में रह रहे हैं, यदि वो एक कलेक्टिव कॉमन गोल के रूप में काम करते हैं, then only it is called society. Otherwise, it is not called society. है ना? तो ये कहा इसमें कि जब हम सभी लोग मिलकर के कलेक्टिव एफर्ट करते हैं, तब उसको हम सोसाइटी कह रहे हैं, है ना? यदि हमारे गोल्स, हर फैमिली का गोल अलग है, हर व्यक्ति का अपना गोल अलग है, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं, तो ये सोसाइटी नहीं है. So in this today's session, we are going to explore the goals of human being living in the society as a human goal. The next point, the dimensions or systems required to achieve the human goals and scope of these systems. So we are going to discuss what are needed in the society so that we can reform the society in such a way that we can get the desirable society in which we all want to live. So there are some 4 goals. The first goal is right understanding and right feeling in every individual. So each and every human being, जैसे मैंने कल बताया था कि in this world all human beings means 700 करोड़ जो लोग हैं,
they all want right understanding and right feeling in himself, है ना? तो every individual में right understanding और right feeling होना आवश्यक है, and this should be our goal. We can understand it by one example over here, that if in my family only my father has a right understanding, only my father has a right understanding, then क्या पूरा परिवार, है ना, मान लीजिए मेरे परिवार में 5-6 लोग हैं, क्या पूरे परिवार उस राइट अंडरस्टैंडिंग से काम कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना? तो हर व्यक्ति के अंदर, परिवार की बात करें, सोसाइटी के जो सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज फैमिली, तो फैमिली से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो फैमिली के हर सदस्य में राइट अंडरस्टैंडिंग हो, हर समाज के हर परिवार में राइट अंडरस्टैंडिंग हो, और धीरे धीरे जो नेशन और वर्ल्ड की बात करें तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग हो। दूसरा जो गोल है दैट इज प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, हर परिवार में प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग हो। और फिर से हम बेसिक यूनिट की तरफ जाएं, यानी कि ह्यूमन बीइंग की तरफ जाएं, तो हर ह्यूमन बीइंग में प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग हो, यानी कि कुल मिलाकर के फैमिली में प्रॉस्पेरिटी हो। The third goal is fearlessness or trust in the society. How we can develop the fearlessness in the society? We can develop fearlessness in the society by developing trust in every human being. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में ममता मैम ने बताया कि हम किसी भी व्यक्ति को ये सोचते हैं कि इसकी इंटेंशन खराब हो सकती है, और मेरी इंटेंशन तो ठीक है, दूसरे की इंटेंशन खराब है, तो उसकी वजह से ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। और यहां पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, प्रीवियस लेक्चर में ये जो इंटेंशन की बात कही गई थी, तो इंटेंशन को लेकर के मैं एक स्टेटमेंट प्रपोजल के रूप में आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो इंटेंशन है ये व्यक्ति के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, वस्तु के हिसाब से, समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से बदलती नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो इंटेंशन है समय के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से और स्थान के हिसाब से बदलती नहीं, यानी कि हर व्यक्ति की जो इंटेंशन है वो सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। इस चीज को आप अपने अंदर एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, वेरीफाई करके देख सकते हैं कि जब आप किसी के सामने अपना पक्ष रखते हैं, परिवार से स्टार्ट करते हैं, समाज में भी अपने पक्ष को रखने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये लगता है कि पीपल शुड अंडरस्टैंड माई सेल्फ, पीपल शुड एटलीस्ट लिसन टू माई व्यू, है ना? तो हर कोई व्यक्ति का जो इंटेंशन है वो ठीक ही होता है, लेकिन हम लोग दूसरे के कॉम्पिटेंस पर डाउट करते हैं, दूसरे की इंटेंशन पर डाउट करते हैं, उसकी कॉम्पिटेंस को देख नहीं पाते हैं, इस वजह से ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। इवन दिस ट्रस्ट आर नॉट समटाइम्स डेवलप्ड इन दी फैमिली मेंबर्स, अमंग दी फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। तो ये कहा कि समाज में फियरलेसनेस होने की बात है, तो ये जो फियरलेसनेस है, इट इज ensured, it can be ensured through developing trust among all the peoples. The fourth goal is coexistence in nature or existence, है ना? तो ये जो coexistence है, यह coexistence का मतलब है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ coexistence में रह रहा है। इस coexistence को थोड़ा सा मैं 2 मिनट बता देता हूँ कि coexistence का मतलब है साथ साथ रहना। यदि हम पूरी पृथ्वी पर coexistence को देखें तो we all are living among the other units of nature. So for example, the animals, the plants, the other human beings, we all are living with each other. We are living in coexistence. So particularly in this societal video, here what is said, that coexistence in nature or existence. तो ये 4 गोल्स को लेकर के हम बात करते हैं, और यदि इन गोल्स को हम एंश्योर कर पाते हैं अपनी सोसाइटी में, तो हमारी जो डिजायरेबल सोसाइटी है उसको हम डेवलप कर पाते हैं। तो बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे हम यहाँ पर पूछ लेते हैं। आर ऑल 4 रिक्वायर्ड डिजायरेबल और कैन वी लीव समथिंग आउट? ये अपने आप में आप क्वेश्चन का आंसर अपने
सेल्फ वेरिफिकेशन के आधार पर, अपने एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन के आधार पर अपने आप को दे सकते हैं कि ये 4 थिंग्स रिक्वायर्ड है। पहला तो रिक्वायर्ड है कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल। दूसरा, another thing which is required is the prosperity in every family. The third thing, fearlessness or trust in the society. And number 4, coexistence in nature or existence. तो ये चारों ही चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं और इसमें से हम किसी चीज को छोड़ भी नहीं सकते। If all 4 are achieved, would anything else be required? समाज में यदि ये चारों गोल्स हमने अचीव कर लिए तो इसके अलावा हमें कोई भी चीज ऐसी आवश्यक नहीं है जिसकी हमको समाज में आवश्यकता होती है। Another question arises, are we working for all 4 in the family, in the society, in the nature or in the existence? Now this question raised on our role कि हम इसके लिए क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा अपने आप में बना ही हुआ है, इसलिए समाज में एकता बहुत कम देखने को मिलती है ना। परिवार में भी यदि जो फीलिंग्स हैं इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की फीलिंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, उन फीलिंग्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, उन फीलिंग्स को इवेल्युएट नहीं कर पा रहे, then there is no justice in the family, and the family is the beginning point of justice. No justice can be ensured in law courts. डिवोर्स केसेस में है ना, यदि वाइफ की तरफ से डिवोर्स केसेस है तो यदि वाइफ जीत जाती है ना, तो हस्बैंड हार जाता है। लेकिन जब बच्चों का क्या, जब बच्चे देखते हैं कि हमारा इसमें क्या कसूर था, तो फैमिली जिस लॉ कोर्ट्स में जो वाइफ ने जो सूट डाला था डिवोर्स के लिए, तो वो कहती है मैं जीत गई है ना, मुझे डिवोर्स मिल गया। लेकिन ये वास्तव में फैसलालय है, ये न्यायालय नहीं है, बिकॉज द जस्टिस इज एंश्योर्ड इन द फैमिली, एंड व्हेन द जस्टिस इज एंश्योर्ड इन द फैमिली देयर इज नो नीड ऑफ लॉ कोर्ट्स। ठीक है, इस पर हम आगे भी बात कर लेंगे। सो there are some questions. Are we working for all these 4 goals in the family, in the society or in the nature? तो यदि हम कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं तभी इस तरह की सोसाइटी हमको देखने को मिलती है। ये जो ब्लैक कलर में आप जो देख रहे हैं कि assumptions, money is everything in every individual, ये हम लोगों में ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये ज्यादातर लोगों में या कहें कि एवरी इंडिविजुअल में ये दिखाई देता है। जबकि गोल क्या होना चाहिए, हमारी जो डिजायरेबल सोसाइटी है, दैट इज every individual should have right understanding and right feeling, and by that only he can be happy, everybody can be happy. Second goal जहां देखते हैं, जो गोल नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, assumptions by any means in few individuals, है ना। इस रूप में आप देखते हैं कि कुछ लोगों में इस तरह की मान्यता बन जाती है कि भाई किसी भी तरीके से एक्यूमुलेशंस कर लो, पैसा जुटा लो, धन संपदा जुटा लो, सारी लोगों की संपत्ति मेरी अपनी हो जाए, इस तरह से कुछ लोगों के अंदर ये फीलिंग आने लगती है। तो ये दोनों जब फीलिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग आदमी के अंदर आ जाती है तो उसका रिजल्ट हम नीचे देखते हैं। ओवेशन फॉर कंजम्पशन यानी कि भोग उन्माद, ओवेशन फॉर प्रॉफिट यानी कि लोभ लाभ उन्माद, और ओवेशन फॉर सेंसुअल प्लेजर्स यानी काम उन्माद। और जहां हम बात कर रहे थे गोल्स की, फियरलेसनेस और ट्रस्ट इन द सोसाइटी, तो ड्यू टू ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाट वी सी इन द सोसाइटी नाउअडेज, वी सी domination, exploitation and fear in the society. That is why in the first session Dr. Mamta gave you the proposal and asked you a question कि he discussed 3 dominant fears कि क्या आपको प्राकृतिक आपदा से भय लगता है, या जंगली जानवर से भय लगता है, या मानव के अमानवीय व्यवहार से भय लगता है। तो ये प्रश्न आया था कि हम सबको मानव के अमानवीय व्यवहार से भय लगता है। तो क्यों ऐसा डर लगता है? क्योंकि सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में जो ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से वी सी डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, फियर इन सोसाइटी एंड टेररिज्म एंड वॉर। यदि हम नेचर को देखने जाते हैं तो नेचर में
we want to mastery over nature and exploit the nature. And that is why we see the result as a resource depletion, है ना, and pollution. So जब ये 4 goals हम लोग एंश्योर नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो राइट अंडरस्टैंडिंग की बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि दैट देयर शुड बी राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल, due to lack of this right understanding and right feeling, this gross misunderstanding is going on in the society. ठीक है, लेकिन ये तो बात ठीक है थियोरिटिकली कि भाई गोल्स हैं 4 और ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग भी उसकी हमने देखी, लेकिन इसको गोल्स तो बन गए, लेकिन हाउ वी कैन अचीव द गोल्स. सो अगेन these are the 5 programs to achieve these 4 goals. To achieve these 4 goals, the first one is we can achieve these goals by first program, that is education and sanskar, शिक्षा संस्कार. दूसरा जो प्रोग्राम है that is health and regulation. Third one, production and work, justice and preservation, exchange and storage. ये 5 कार्यक्रम हैं. यदि हम सब लोग कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू अपना रोल को प्ले करते हैं समाज के अंदर, तो ये 4 गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं. और इन 4 गोल्स के अचीव करने के बाद जिस डिजायरेबल सोसाइटी में, जिस सपने के समाज में हम रहना चाहते हैं, वी कैन डेवलप दैट सोसाइटी एंड वी कैन लिव हैप्पीली. तो अब मैं एक एक करके इन सारे प्रोग्राम्स को डिस्कस करूंगा. उससे पहले हम ये देख लें कि ये जो प्रोग्राम्स हैं 5, इनको यदि हम सब लोग एंश्योर करते हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू, जितना कुछ स्किल्स और एफर्ट्स एक इंडिविजुअल अपने तरफ से कर सकता है, तो उससे कौन कौन से गोल्स हमारे अचीव होते हैं. तो ये जो पहला गोल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल, दिस कैन बी अचीव्ड by the first program, that is education and sanskar. I will go into detail after this slide, but right now I am telling you कि कौन सा गोल किस प्रोग्राम से अचीव हो सकता है. तो जो पहला वाला जो गोल है, it can be achieved by the first program, that is education and sanskar. The second goal and fourth goal can be ensured by health and self-regulation, production and work. And this justice can ensure the third goal, that is fearlessness or trust in the society, and preservation. Preservation of what? Preservation of natural things can ensure the fourth goal, that is coexistence in nature. So now I'm going to discuss all the programs one by one. What do we mean by education and sanskar? Here is the definition of education, and I want that each and every participant should verify this so-called definition in themselves and try to find the answer in themselves. So what we are saying, education means to develop the right understanding of the harmony at all 4 levels of our being, from self to the entire existence. जिन 4 लेवल्स की हम शुरू से बात करते आए हैं, इंडिविजुअल लेवल ऑफ लिविंग, फैमिली लेवल ऑफ लिविंग, सोसाइटी एंड नेचर एंड एग्जिस्टेंस. तो आज की जिसको हम आज एजुकेशन कह रहे हैं, इफ आई गेट अ डिग्री इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, से फॉर एग्जांपल a student who is studying in a medical college, if he gets a degree, है ना, तो वो अपने आप को एजुकेट कहता है. एक लॉयर जब एक डिग्री ले लेता है तो अपने आप को लॉयर कहलाता है. एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट एक डिग्री ले लेता है तो वो कहता है कि आई एम एन इंजीनियर. तो ये जो सारी चीजें हैं, दे आर द प्रोग्राम्स टू डेवलप द स्किल्स इन द अमंग द स्टूडेंट्स. सो this is not a complete education. Something is incomplete in that. तो वो एजुकेशन जिसको हम एजुकेशन कह रहे हैं, वो कब कंप्लीट हो पाएगी? वो जब कंप्लीट हो जाएगी जब हम उन स्किल्स के साथ साथ, उन डिग्रीज के साथ साथ
हम अपने जो सेल्फ है उसको हम डेवलप कर पाएंगे, है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। और ये जो राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, 4 स्तर की व्यवस्था को हर इंडिविजुअल समझ पाएगा। परिवार क्या है, परिवार में फीलिंग्स क्या है, मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या चलता है, क्या मैं डिसहार्मनी में रहता हूं हर समय, या मैं हार्मनी में रह रहा हूं, या मैं डिसहार्मनी में रह रहा हूं, तो मुझे अपने लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, नेचर के प्रति मेरा क्या रोल है। जब तक हम इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक हम जो एजुकेशन जिसको कह रहे हैं, इट इज इनकम्प्लीट एजुकेशन। नाउ आई कम टू संस्कार। संस्कार किसको कह रहे हैं? कि जो कुछ हमने एजुकेशन में पढ़ा या समझा, वो सारी चीजें हमारे जीने में आ जाए। जितनी सारी चीजें हमने अपने एजुकेशन में समझा, यानी कि स्किल्स भी हमने डेवलप किए, दूसरा ये 4 स्तर की व्यवस्था को भी हमने समझा, और इनमें सारी जिन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया, वो सारी चीजें हमारे जीने में आ जाए। यानी कि द कमिटमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन हार्मनी एंड प्रिपरेशन, द प्रिपरेशन इंक्लूड्स लर्निंग द स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी for living in harmony or at all levels, from the self to the entire. So this was education and संस्कार। तो इस तरह का कार्यक्रम यदि हम हर एक व्यक्ति के लिए एंश्योर करा पाते हैं, तो हमारा जो पहला गोल है, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल, इट इज एंश्योर। इसी को आगे डिस्कस किया है। एजुकेशन क्या है? डेवलपिंग राइट अंडरस्टैंडिंग। Right understanding includes the skills as well as the understanding of harmony at all 4 levels of living. संस्कार की इन सारी चीजों को जो मैंने सीखा है, वो मेरे सारे जीने में आ जाए, और मैं दूसरे के साथ जब व्यवहार करने जाता हूँ, तो उसको मेरे व्यवहार में वो सारी शिक्षा को मैं उसके सामने उसी तरीके से व्यवहार कर पाऊँ, उसके सामने रख पाऊँ। So डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस टू लिव ए डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट। यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट, दिस इज द गोल ऑफ दिस एजुकेशन, कि हर व्यक्ति का जो कंडक्ट है वो डेफिनेट हो जाए, और हर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन से सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाए। अभी ज्यादातर चीजों हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फैमिली में बड़े लोग छोटे बच्चों को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम ये करो, तुम ये नहीं करो, डूज एंड डोंट्स बहुत सारे बताते रहते हैं, जिससे कि उनके परिवार में वो बच्चे डिसिप्लिन में रहे, है ना। तो हमको ये बताना है कि भाई हम बार बार बच्चों से डिसिप्लिन की बात करेंगे, ये करो ये नहीं करो की बात करेंगे, बल्कि हमको उनके अंदर ये चीज डेवलप करें कि सेल्फ डेवलपमेंट उनके अंदर हम एंश्योर कर पाए, तो जो परिवार है और जो समाज है वो ठीक से चल पाएगा। सो राइट अंडरस्टैंडिंग किसको कह रहे हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग इज विजडम और क्लैरिटी अबाउट व्हाट टू डू एज अ ह्यूमन बीइंग in oneself, family, society and nature. What do we mean by right feeling? The capacity to live in relationship with the other human beings in family, society, है ना। तो राइट फीलिंग के साथ मैं परिवार में, समाज में, नेचर के साथ रह पाऊं, ठीक है, तो इसको राइट फीलिंग कह रहे हैं। यानी कि हम चाहे कोई भी पेड़ है, कोई जानवर है, कोई वस्तु है, उसके साथ में अपना अटैचमेंट फील करूं, उससे अपना रिलेशनशिप फील करूं, है ना, इसको राइट फीलिंग कह रहे हैं। राइट स्किल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई। प्रॉस्पेरिटी की कई बार बात की गई स्टार्टिंग के सेशंस में। तो प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर डेली नीड्स, फिजिकल फैसिलिटी, जो चीज जिस फिजिकल फैसिलिटीज की हमको अभी आज की तारीख में आवश्यकता पड़ रही है, आवश्यकता महसूस हो रही है, उसको आइडेंटिफाई कर ले कि क्या ये आवश्यकता मेरी किसी मान्यता के तहत पैदा हुई है, या किसी सेंसेशन के थ्रू बनी है, या मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग बनी है। सो द राइट स्किल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी इंक्लूड्स टू डेवलप द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। Second, the skills and practice for sustainable production of more than what is required, है ना।
way of labor using cyclic mutually enriching process. और ये जो हम प्रोडक्शन अपने लिए कर रहे हैं, इसमें भी एक बात मैं आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, कि ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ये इस तरह से होना चाहिए कि प्रोडक्शन भी हो जाए और नेचर को भी हम किसी रूप में हार्म न करें। तो इस तरह का, और एक और बात इसमें है कि हम जो भी प्रोडक्शन करें वो साइक्लिक हो और उसको किसी चीटिंग और एक्सप्लॉयटेशन के तहत हम उस प्रोडक्शन को ना करें। यानी कि यदि हम किसी कंपनी में या फैक्ट्री के मालिक हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, अपने एम्प्लॉइज को हम चीटिंग कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से न करके हम हार्मनी डेवलप करके और इन सारे प्रोडक्शंस को करें। तो राइट स्किल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी में सेकंड पॉइंट है कि जो भी चीज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो राइट मीन्स से करें, विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन एंड चीटिंग के करें। The third one is the feeling of prosperity, and in our throughout life we have to feel the prosperity. So मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिला दूं, prosperity क्या है? Prosperity is the feeling. Prosperity is the feeling of having more than required physical facility. यानी कि मैं अपने अंदर ये जांच करके देख पाऊं कि जितनी फिजिकल फैसिलिटी मेरे पास आज की तारीख में है, क्या वो मेरी आवश्यकता से अधिक है या नहीं है। यदि जितनी फिजिकल फैसिलिटी मेरी आज की तारीख में मेरे पास है, उन सबको देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मुझे ये लगने लगे, मुझे ये दिखने लगे कि भाई ये तो मेरी आवश्यकता से अधिक है, तो ये फीलिंग जब डेवलप होती है तो मैं प्रॉस्परस, देन आई एम कॉल्ड प्रॉस्परस पर्सन। सो राइट स्किल्स ऑफ फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये चीज इसमें बात बताई आपको। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन या जो रोल ऑफ एजुकेशन है वो ये है कि इस तरह का समाज जहां पर हम ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग देख रहे थे, जिस समाज को हम क्राउड और बैटलफील्ड के रूप में देख रहे थे, उससे हम ट्रांसफॉर्म करके और इस सोसाइटी में आ जाएं जहां पर हर व्यक्ति के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है और हर परिवार में प्रॉस्पेरिटी है, हर समाज में फियरलेसनेस और ट्रस्ट है और नेचर के साथ हर व्यक्ति को एग्जिस्टेंस में रह रहा। तो व्हाट इज नीडेड नाउअडेज? व्हाट इज नीडेड? ये जो ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसमें से निकल करके हर व्यक्ति अपना राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ट्रांसफॉर्म करते हुए इस सोसाइटी में आ जाए। तो ह्यूमन एजुकेशन से पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल थ्रू ह्यूमन एजुकेशन एंड संस्कार। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा दूसरा गोल है, प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली, एवरी फैमिली, हाउ इट कैन बी अचीव्ड। सो हियर वी सी द सेकंड प्रोग्राम, इट कैन बी अचीव्ड by ensuring health and self-regulation, first of all. So what does this self-regulation means? Self-regulation means the feeling of responsibility for nurturing, protection and right utilization of the body. इसी को हिंदी में हम कहें तो संयम कह सकते हैं। संयम एक भाव है जो मेरे अंदर होता है और इस संयम का भाव को हम सेल्फ रेगुलेशन कह रहे हैं। और इस सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि चूंकि देखिए ह्यूमन बीइंग को हमने समझा था, ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी। तो सेल्फ में तो डेवलपमेंट हो सकता है कि हम राइट एजुकेशन एंड राइट संस्कार से मेरा सेल्फ डेवलप हो सकता है, लेकिन बॉडी जो कि मेरा इंस्ट्रूमेंट है, यदि ये स्वस्थ नहीं रहता है तो मेरे कितने भी अच्छे प्रोग्राम्स मैंने बना रखे हैं, कितनी भी अच्छी प्लानिंग्स मेरे पास है, आई कैन नॉट एग्जीक्यूट दोज प्रोग्राम्स इन पब्लिक, है ना। तो बॉडी मेरी फिट रहे, उसके लिए कार्यक्रम है कि मेरे सेल्फ में बॉडी के प्रति एक जिम्मेदारी हो कि भाई मुझे अपनी बॉडी को नर्चर करना है, प्रोटेक्शन करना है और उसका राइट यूटिलाइजेशन करना है। So this feeling should be developed in every individual, and this feeling can be developed again through right understanding.
The second point is health. What do you mean by health? The body acts according to the self. यानी कि कल मैंने अपने लेक्चर में ये बताया था कि there is a close coordination between the self and the body. तो बॉडी के थ्रू सेंसेशन से जो भी इंफॉर्मेशन मेरे सेल्फ तक पहुंचती है ब्रेन के माध्यम से, फिर सेल्फ उसको पढ़ता है और फिर उसके अकॉर्डिंग बॉडी को इंस्ट्रक्शंस पास करता है, तब हमारी बॉडी ईच एंड एवरी मोमेंट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेल्फ आई. यहां पर मैं जो बातें आपको कह रहा हूं, मेरे सेल्फ में जितने विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को किस तरह से शब्द देना है, कौन सा शब्द उसके लिए अप्रोप्रिएट है, उसका मैं चयन कर रहा हूं. तो सेल्फ चयन कर रहा है और बॉडी तो उसको केवल बोल पा रहा है ना. तो जब मुझे ये फीलिंग मेरे अंदर आ जाए कि भाई मेरी बॉडी मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको ठीक रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसका नर्चर करना मेरी जिम्मेदारी है, इसका प्रोटेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है, इसकी राइट यूटिलाइजेशन करना मेरी जिम्मेदारी है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन. और यदि मैं ऐसा कर पाता हूं तो दी हेल्थ इज एंश्योर्ड इन माय फैमिली. एंड हेल्थ मींस all my body parts are working accordingly to the instructions of the self I. है ना. नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं इसमें थर्ड प्रोग्राम और थर्ड प्रोग्राम की प्रोडक्शन एंड वर्क. तो प्रोडक्शन एंड वर्क जो हम करते हैं ये हमारा नेचर के साथ होता है. तो प्रोडक्शन एंड वर्क हम ठीक करते हैं तो उससे हमारी नेचर एनरिच होती है, नेचर प्रॉस्परस होती है. तो इसको आगे देख लेते हैं. अभी बॉडी के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं. तो प्रोग्राम फॉर हेल्थ रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेशन, इसको कह रहे हैं देयर इज अ फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ आई टुवर्ड्स द बॉडी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी. तो यदि मेरे सेल्फ में ये भाव है कि मेरी बॉडी मेरा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके प्रति मेरे अंदर एक फीलिंग आती है कि भाई इसको तो सुरक्षित रखना है. जैसे हम लोग एक बिलोंगिंगनेस अपने मोबाइल फोन के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, है ना, अपनी कार के साथ देखते हैं कि ये मेरी कार है, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा लैपटॉप है, इसको मैं यदि बेकदरी से इस्तेमाल करूंगा तो ये जल्दी खराब हो जाएगा. तो एक बिलोंगिंगनेस हमको रहती है, तो उसको हम ठीक से मेंटेन करते हैं. इन द सेम वे जब मैं अपनी बॉडी को देख पाता हूँ कि बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट, तो मैं उसकी नर्चर, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन की जिम्मेदारी लेता हूं. तो उसके लिए जो प्रोग्राम है वो ये है, 3 प्रोग्राम इसके लिए हैं. A, staying healthy. B, bringing body back to harmony from temporary disharmony. And C, dependence on drug, medicine, machine to perform a body function. तो हम लोग ये कोशिश करें कि ये जो A वाला जो पोर्शन है, staying healthy, इसको मेंटेन करके रखें. तो उसके लिए हमको क्या करना है? There are 3 programs. We have to check our intake and daily routine. यानी कि आहार और विहार हम अपना ठीक करें. आहार माने कि जो हम भोजन ले रहे हैं, जो हम खाने में सिलेक्शन कर रहे हैं, और डेली रूटीन माने हमारी लाइफ स्टाइल, कि हम कैसे जी रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, किस तरह हम लोग कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है. तो यदि मैं ऐसा करता हूं, फर्स्ट प्रोग्राम को श्योर करता हूं, इनटेक एंड डेली रूटीन को ठीक रखता हूं, तो मेरी बॉडी हेल्दी रहती है. इसके बाद नेक्स्ट जो जरूरी काम है वो है लेबर एंड एक्सरसाइज. मेरी बॉडी से यदि मैं कुछ लेबर कराता रहता हूं और एक्सरसाइज करता हूं, है ना, तो भी मेरी बॉडी फिट रहती है. तीसरा जो प्रोग्राम है, पोस्चर फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स एंड रेगुलेटेड ब्रीदिंग, यानी कि आसन और प्राणायाम, जो आजकल हमारे देश में बाबा रामदेव और हमारे प्राइम मिनिस्टर सर इस चीज को इंश्योर करने में लगे हुए हैं कि आसन और प्राणायाम से हम ठीक हो सकते हैं. तो पहला जो ब्लॉक है स्टेइंग हेल्दी, इसमें हम यदि 3 प्रोग्राम को अपने लिए इंश्योर करते हैं तो ये जो मेरा सेल्फ का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक रहता है. यदि किसी कारण से किसी एक्सटर्नल अफेयर से मेरी बॉडी में कुछ नुकसान हो जाता है, जैसे अभी कोविड-19 पेंडेमिक फैला हुआ है,
इससे ये मेरा, मान लीजिए मैं किसी भी तरीके से अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ से मैं इससे अफेक्टेड हो जाऊं, तो उस स्थिति में मुझे मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि थोड़ी बहुत बीमारी हो जाती है तो मेडिसिन की मुझे आवश्यकता पड़ती है, और यदि ज्यादा बीमार हो जाता हूं तो मुझे ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कभी कभी ऑपरेशन वगैरह जैसी चीजों की भी काम लेना पड़ता है। तो बॉडी को फिट रखने का जो प्रोग्राम है, इसको हम सेल्फ रेगुलेशन या संयम कह रहे हैं। और यदि ये इंश्योर हम कर पाते हैं तो जितने भी प्रोग्राम्स हमने सोच रखे हैं, they can be ensured very easily. Now I come to the second goal, that is prosperity in every family. How we can achieve this prosperity in every family? We can achieve this by again second and third program. तो second third program को जो production and work की जो बात कर रहे हैं, तो here is the statement, or we can say it is a proposal. Don't assume it to be true, and don't accept it immediately, and don't reject it immediately. Then what you have to do, you have to check it into your natural acceptance, whether it is right for you or not right for you. So what is work? The labor a human being does on rest of nature. यानी कि मानव धरती के साथ जो भी कोई श्रम करता है उसको हम कार्य कह रहे हैं, और उसी श्रम से कुछ न कुछ प्रोडक्शन जरूर मिलता है। तो प्रोडक्शन किसको कह रहे हैं? द फिजिकल फैसिलिटी ऑब्टेन्ड आउट ऑफ वर्क। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, है ना? जैसे हमारा जो किसान है, वो धरती के साथ मेहनत करता है, श्रम करता है, तब कहीं जाकर के फसल हम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाती है। हम लोग को यदि कहीं बाजार जाना है, पैदल चलना है, पैदल चल करके बाजार जाना है, तो उस समय भी हम धरती के साथ कार्य करते हैं। हमारा पैर जो है धरती के साथ रगड़ता है, तब हम आगे के लिए मोमेंटम बन पाता है। तो अगेन वी आर वर्किंग विथ नेचर, और जब हम नेचर के साथ वर्क करते हैं तो उसका प्रोडक्शन के रूप में हमको कुछ आउटपुट मिलता है। तो प्रोडक्शन एंड वर्क है। वर्क कह रहे हैं कि द लेबर अ ह्यूमन बीइंग डज on rest of nature, and production is the physical facility obtained out of work. अभी आगे इसी में जो वर्क है, जो हम आजकल कह रहे हैं कि भाई नेचर के साथ हम कोई श्रम कर रहे हैं, उसको हम वर्क कह रहे हैं। तो दो काम से हम वर्क करते हैं। एक तो प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए भी हमको एक क्वेश्चन अपने आप में पूछ लेना है, what to produce before working with the nature, कि what to produce, यदि हम कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो what to produce. Actually nowadays only few people are focusing on this question, what to produce. That is why they are producing so many things. और ये जितनी भी चीजें प्रोडक्शन हमारी कंपनीज में, फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, वो सारी चीज मार्केट में आ रहे हैं, और वो हमको एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ये टेम्पटेशंस हमारे अंदर डेवलप करते हैं कि भाई इसको खरीदो, इसके बिना आपकी लाइफ ठीक नहीं है। और तमाम दुनिया के प्रोडक्शंस जो हमारी लाइफ में आज की तारीख में जरूरी है या नहीं, हर तरह का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में पूछ लेना आवश्यक है कि यदि मैं रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, शेष प्रकृति के साथ कोई कार्य करता हूं, तो उसमें हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो required physical facility necessary for nurturing, protection and right utilization of the body. हमको उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करना है जो मेरे लिए फिजिकल फैसिलिटीज के लिए के रूप में आवश्यक है, जिनसे मैं अपनी बॉडी का नर्चर कर सकता हूँ, प्रोटेक्शन कर सकता हूँ और राइट यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हाउ टू प्रोड्यूस, जिसको मैंने पहले कहा था हाउ टू प्रोड्यूस। तो यहां पर एक बेसिक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये देख लें, आज की तारीख में हम देखते भी हैं कि अभी जब से ये लॉकडाउन हुआ, तब से बहुत सारी फैक्ट्रीज, कंपनीज बंद हो गई, तो उसका जो वेस्ट हमारे नदियों में जो जा रहा था, जिससे हमारी नदियां पॉल्यूटेड हो रही थी, अब वो वेस्ट जाना बंद हो गया। या हमारे इंजिन्स में बहुत सारी पेट्रोल हम लोग जला रहे थे, तो उससे एक पॉल्यूशन हम लोग कर दे रहे थे, वो पॉल्यूशन भी एकदम से डाउन आ गया इस लॉकडाउन में, है ना।
तो हम ये देखने की कोशिश करें, हम ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करें जिससे कि हम उसको अपने लिए अचीव भी कर पाए। दूसरा, वो नेचर से किसी रूप में, नेचर को किसी रूप में हार्म न करे, है ना। तो क्या होना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोडक्शन का जो मेथड है वो ऐसा हो जो कि म्यूचुअली एनरिचिंग हो, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू हो, यानी कि ऐसी चीजें हम प्रोड्यूस करें जो साइक्लिक हो। अभी हम बहुत सारी चीजें ऐसी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, तो वो जमीन में जाकर के और वो पॉल्यूशन के रूप में हमको दिखाई देती है। तो म्यूचुअली एनरिचिंग हो, साइक्लिक प्रोसेस हो, इको फ्रेंडली हो, इस तरह का प्रोडक्शन हमको करना है, यानी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भी हमको डेवलप करनी है। एंश्योरिंग जस्टिस, पीपल फ्रेंडली भी हो। तो इतना, ये 2 क्वेश्चंस वर्क के बारे में यहाँ पर करने थे। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा 4th गोल है, को एग्जिस्टेंस इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, ये हमारा फुलफिल होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 4th प्रोग्राम, जस्टिस। तो जस्टिस क्या है? सुबह 10 बजे वाले लेक्चर में ममता मैम ने आपको फैमिली में बहुत सारी फीलिंग्स, 9 डेफिनेट फीलिंग्स के बारे में डिस्कस किया। तो जैसे ट्रस्ट से जब वहां डिस्कस करना शुरू किया, तो ट्रस्ट इज कॉल्ड द फाउंडेशनल वैल्यू। जब किन्हीं 2 लोगों के बीच में, हम कोई भी 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे हम अननोन पर्सन का एग्जाम्पल ले लें, अपने फैमिली मेंबर्स का एग्जाम्पल ले लें, 2 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ले लें, या 2 पड़ोसियों का एग्जाम्पल ले लें, हम कोई 2 व्यक्तियों को ले लें। यदि वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ कार्य करते हुए, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए ये इंश्योर कर लें कि भाई सामने वाला मेरे हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करता है, तो धीरे धीरे उन दोनों में ट्रस्ट डेवलप होता है। दैट इज वाई ट्रस्ट इज कॉल्ड द फाउंडेशनल वैल्यू। जब 2 लोगों में ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो फिर आगे चलते हुए दोनों एक दूसरे का सम्मान भी करने लगते हैं, यानी कि रेस्पेक्ट डेवलप एक दूसरे के अंदर होने लगता है। जब ट्रस्ट और रेस्पेक्ट 2 लोगों के बीच में जब डेवलप होता है, तो 3rd फीलिंग, अफेक्शन की जो बात की थी, वो भी डेवलप हो जाती है। यानी कि अफेक्शन मैंने बताया था कि हम दूसरे को अपना संबंधी स्वीकार लेते हैं, दूसरे को अपना संबंधी स्वीकार लेते हैं। तो ये 3 भाव बहुत मुख्य है ह्यूमन रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगले जो 6 भाव है, इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, जो एक एक करके ममता मैम ने बताए थे। तो जस्टिस किसको कह रहे हैं कि हम जितनी भी फीलिंग्स हमारे परिवार में हैं या किन्हीं संबंधियों के बीच में हैं, उन फीलिंग्स का हम इवैल्यूएशन करें, फुलफिलमेंट करें और रिकॉग्निशन करें। रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि हम देख पाए, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि सामने वाला मेरे प्रति कोई फीलिंग रख रहा है कि नहीं रख रहा है। इवैल्यूएशन करें कि कितने स्तर तक रख पा रहा है ना, और फुलफिलमेंट करें कि जब सामने वाला मेरे से कोई फीलिंग रख करके कोई मेरे प्रति काम कर रहा है, तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, मेरा क्या फुलफिलमेंट है। तो इतनी बातें जब हम एक दूसरे में देख पाते हैं, सारे भावों को हम एक दूसरे में इवेल्युएट कर पाते हैं, फुलफिल कर पाते हैं और रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो जस्टिस एंश्योर होता है। और जहां पर परिवार में और समाज में ये जस्टिस एंश्योर होता है, तो फियरलेसनेस और ट्रस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये 9 भाव डिस्कस किए थे, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड एंड लव। तो जस्टिस को कहा कि जस्टिस इज द रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। और यहां पर म्यूचुअल हैप्पीनेस रिजल्ट के रूप में आती है। यदि जस्टिस एंश्योर हो पाता है, तो म्यूचुअल हैप्पीनेस, यानी कि 2 लोग जो रिलेशनशिप के साथ रह रहे हैं, वो म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ रह सकते हैं। तो जब जस्टिस एंश्योर्ड है, तो म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर्ड है, और जब म्यूचुअल हैप्पीनेस और जस्टिस दोनों एंश्योर्ड है, देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी लॉ कोर्ट्स, किसी भी न्याय पंचायत की या लॉ कोर्ट्स की आवश्यकता नहीं। तो यदि जस्टिस इज एंश्योर्ड, देन द म्यूचुअल हैप्पीनेस इज एंश्योर्ड। Fourth one is preservation.
प्रिजर्वेशन क्या कह रहे हैं? देखिए नेचर में भी जितना सब प्रोडक्शन होता है, इसमें जितना मेरी आवश्यकता है उसको अपनी आवश्यकता के लिए मैं अपने लिए रख लूं, और बाकी को मैं दूसरों को भी दे दूं, लेकिन जितना मुझे आवश्यक है उसको मैं प्रिजर्व करके रखूं, जिससे कि वो वेस्ट ना हो पाए। अभी हम देखते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है कि जो भी अनाज है वो उनके गोडाउन्स में देखते हैं तो वो अनाज सड़ जाता है। कई बार बहुत सारी न्यूज हम लोग देखते हैं, तो ये उसका ठीक से प्रिजर्वेशन न करने की वजह से हो रहा है। तो हर व्यक्ति ये इंश्योर कर ले कि जो कुछ हमको प्रोडक्शन नेचर से मिल रहा है हम उसका प्रिजर्वेशन करें। तो प्रिजर्वेशन किसको कह रहे हैं? रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन रेस्ट ऑफ नेचर रिलेशनशिप इज फुलफिलमेंट एंड इवोल्यूशन लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी और म्यूचुअल एनरिचमेंट। तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रेस्ट ऑफ नेचर। तो जितना कुछ हमको प्रोडक्शन नेचर से मिल रहा है, जितना हमारे लिए आवश्यक है उसको हम अपने लिए रख लें, उसका हम इस्तेमाल कर लें, बाकी को हम सुरक्षित रख दें, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हम उसको दूसरे के साथ शेयर कर पाए। तो यदि प्रिजर्वेशन की फीलिंग, प्रिजर्वेशन का गोल को हम अपने साथ रखते हैं तो नेचर के साथ हम कोएग्जिस्टेंस को एंश्योर कर पाते हैं। और फिफ्थ वन इज एक्सचेंज एंड स्टोरेज। तो यहां पर हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइड में कि जो प्रिजर्वेशन है इसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा कोई चीज है, एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्शन हमारे पास है, उसको हम एक्सचेंज कर पाए। एक्सचेंज जैसे हम अपने पुराने सिस्टम को देखते हैं गांव देहात के कि जितना जो कोई प्रोडक्शन मेरे अपने एरिया में होता था, से फॉर एग्जांपल मेरे एरिया में गेहूं अधिक होते हैं तो मैंने गेहूं पैदा कर लिया, दूसरे एरिया में फल ज्यादा पैदा होते हैं तो वहां पर फल उन्होंने पैदा कर लिया, कहीं दालें ज्यादा पैदा होती है, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोडक्शन होता है। तो एक्सचेंज में जो पुरानी व्यवस्था थी कि मेरे पास जो है उसको मैं दूसरे को दे दूं और जो मेरे यहाँ नहीं होता है वो दूसरी जगह से ले आऊं अपने लिए। सो दिस इज एक्सचेंज एंड स्टोरेज, कि वही जितना कुछ है उसको मैं आगे के यूज के लिए स्टोर करके रखूं। तो यदि ये जब मैं कार्यक्रम करता हूं, एक्सचेंज और स्टोरेज का कार्यक्रम यदि मैं इंश्योर करता हूं, तो उससे मेरे समाज के जो दो गोल्स हैं, दूसरा और तीसरा, प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली और फियरलेसनेस और ट्रस्ट इन द सोसाइटी, तो ये दोनों से इंश्योर होते हैं। क्योंकि एक्सचेंज प्रॉपर हो पा रहा है, स्टोरेज प्रॉपर हो पा रहा है, प्रिजर्वेशन प्रॉपर हो पा रहा है, तो किसी भी तरह की जो अव्यवस्था है समाज में प्रोडक्शन को लेकर के, अनाज को लेकर के, फिजिकल फैसिलिटीज को लेकर के, वो नहीं हो पाती है, तो समाज में किसी तरह का भय हमको दिखाई नहीं देता है और एक दूसरे पर हम ट्रस्ट करते हैं। और जब ये तीनों चीज हम इंश्योर करते हैं, प्रिजर्वेशन, एक्सचेंज एंड स्टोरेज, तो मेरे अंदर प्रॉस्पेरिटी की भी फीलिंग डेवलप होती है, मेरे परिवार के अंदर प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग होती है। तो इससे हमारे सेकंड एंड थर्ड गोल इंश्योर होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि there are 4 human goals which we have to ensure in our society, and these 4 goals can be achieved by these 5 programs: education and sanskar, health and self-regulation, production and work, justice and preservation, exchange and storage. Now I come to the sum up of this chapter, that is harmony in society. A society is composed of families living together in a relationship of mutual fulfillment. Mutual fulfillment के साथ, common goal के साथ, families जो एक साथ रह रही हैं उसको हम समाज कह रहे हैं। और बैटलफील्ड किसको कह रहे हैं या क्राउड किसको कह रहे हैं? जहां पर लोग तो रह रहे हैं, परिवार तो है, लेकिन डिफरेंट गोल्स हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं, कॉमन गोल्स नहीं है। तो ऐसे समाज को हम समाज न कह करके उसको हम क्राउड कह रहे हैं या उसको बैटलफील्ड कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति दूसरे के सामान को हड़पने के लिए, अपना बनाने के लिए लगा। So society is composed of families living together in relationship of mutual fulfillment. They have a common goal
which is right understanding and right feeling in every individual, prosperity in every family, fearlessness or trust in society, and lastly, coexistence in nature or existence. The family is the basic unit of society. That is, society is composed of family, group of families, थोड़ी सी मतलब जो लोग गांव देहात में रहते हैं तो छोटा सा कोई गांव है तो ग्रुप ऑफ फैमिलीज को हम एक सोसाइटी वहां से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, विलेज फैमिली, ग्रुप ऑफ विलेज फैमिलीज, टाउन फैमिलीज एंड सो ऑन. तो इस तरह से हम लोग अपने परिवार से लेकर के छोटे से परिवार समूह से एक समाज बना, फिर विलेज ग्रुप फैमिलीज को लेकर के बात कर रहे हैं, विलेज फैमिली ग्रुप को लेकर के बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपने इस स्तर को बढ़ा रहे हैं. तो वर्ल्ड को भी हम एक परिवार के रूप में देख सकते हैं. तो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात बहुत पहले से हमारे यहाँ आई है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं. Through the preparation of every family, through the participation of every family in society in the 5 dimensions social systems, the common goal is fulfilled for all. Means from family order to world family order. तो ये हमारा गोल हो कि भाई केवल हम फैमिली तक सीमित ना रहे, अपने समाज तक सीमित ना रहे, एक सार्वभौम समाज के लिए हम काम करें. और ये this should be done generation after generation, and it can be possible through right education and sanskar. And through right education and sanskar means the education which includes to understanding the 4 levels of living: family, society, nature or existence. इसको conclude करें तो देखते हैं the current civilization is largely based on the assumption that human being body happiness is derived primarily from sensual pleasure and feeling from others, and hence accumulation of physical facility, domination and exploitation is at the core of social economic systems. तो चूंकि ये जो systems की हम बात कर रहे हैं, मैं पिछले सेशन में देख रहा था डॉक्टर किरण सिंह का एक क्वेश्चन यहाँ पर था कि इस तरह की जो शिक्षा प्रणाली है ये कहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है. तो मैं डॉक्टर किरण सिंह को बताना चाहूंगा कि AICTE अब इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है जिसमें वैल्यू एजुकेशन को अब लोग प्रमोट कर रहे हैं. तो ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है इसको नोडल सेंटर बनाया है इस तरह की एजुकेशन के लिए, और ये बीटेक के बच्चों के लिए ये कोर्स कंपल्सरी कोर्स है और ये हर बीटेक के बच्चों को पढ़ाया जाता है. और सारी यूनिवर्सिटीज, इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज है, ये सब AKTU के थ्रू गवर्न होंगी, मतलब नोडल सेंटर बनाया जाएगा और AICTE के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रहा है. धीरे धीरे करके इस बात को जो आपने पूछा या हम लोग यहाँ पर जो शेयर कर रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है कि हर स्टूडेंट तक ये बात पहुंचे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट गोल था कि देयर शुड बी राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल. तो दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय एंश्योरिंग दिस राइट एजुकेशन एंड संस्कार विद ऑल द इंडिविजुअल्स. नाउ आई एम गोइंग टू start the second presentation, that is understanding harmony in nature. So this is our fourth level of living. जैसा हम पढ़ते आ रहे थे स्टार्टिंग से, हमने शुरू किया था हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग से, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी को हमने अभी डिस्कस किया. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस. तो नेचर को हम समझने जाते हैं तो जितनी भी यूनिट्स जो हम अपने आसपास देखते हैं इसके कलेक्शन को हम नेचर कह रहे हैं. मीन्स एयर, वाटर, ट्रीज, सॉइल, एनिमल बॉडी, सेल्फ, ह्यूमन बॉडी, सन, मेटल्स, मून, अर्थ, all these are the units and nature is the collection of all these units. ये सारी चीजें हम अपने चारों तरफ देखते हैं. And we are also
single individual is also a unit of this nature. तो इन सारी चीजों को मिलाकर के हम नेचर कह रहे हैं. अभी इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो जितनी ये सारी चीजें यहाँ पर यूनिट के रूप में हम लोग देख रहे हैं, इन सबको यदि हम कैटेगराइज करने जाए तो इनको 4 ऑर्डर्स में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज बायो ऑर्डर. इसको यहां से लेकर के चलते हैं, फिजिकल ऑर्डर से लेकर के चलते हैं. फिजिकल ऑर्डर या इसको कहें मटेरियल ऑर्डर. इस फिजिकल ऑर्डर या मटेरियल ऑर्डर में जितना भी कुछ मिनरल्स, मेटल्स, एयर, वाटर, लिक्विड, सॉलिड, जितनी भी चीजें जो आती हैं, these falls under the physical order. And then जितने भी पेड़ पौधे हम देखते हैं, ये सब बायो ऑर्डर में, यानी कि इसको प्राणिक ऑर्डर भी कहते हैं. हिंदी में इसको देखें तो इसको प्राणिक ऑर्डर भी कहते हैं. प्राणिक ऑर्डर का मतलब है कि जिसमें रेस्पिरेशन हो पाए, जिसमें रेस्पिरेशन हो पाए, उन सारी चीजों को जहां पर रेस्पिरेशन होता है उन सबको बायो ऑर्डर में रखा हुआ है, जिसमें ट्रीज, एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीजों को प्राणिक ऑर्डर या बायो ऑर्डर में हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं. थर्ड ऑर्डर इज एनिमल ऑर्डर. तो जितने भी हम पूरी संसार में जितने भी जीव जंतुओं को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, ये इस एक ऑर्डर में आ जाते हैं. और चौथा जो ऑर्डर है दैट इज ह्यूमन ऑर्डर, जिसमें हम सब लोग आते हैं. तो यदि इन सारी यूनिट्स को हम कैटेगराइज करने जाते हैं तो दीज आर द 4 ऑर्डर्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड थॉरोली. तो इसमें हम एक बात देखते हैं कि पहले जो 3 ऑर्डर्स हैं, फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर, देयर इज अ क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन अमंग दीज 3 ऑर्डर्स, फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर. तो ये जो क्लोज कोऑर्डिनेशन है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायो ऑर्डर की और फिजिकल ऑर्डर की. तो इसमें हर पेड़ पौधा सॉइल, मिनरल, वाटर, एयर, इन सब पर डिपेंडेंट है. और ये जो सॉइल भी है, इसको भी जो बायो ऑर्डर है, ये कुछ ना कुछ उसके लिए करता ही करता है. जैसे मिट्टी, जहां पर आपने देखा होगा पहाड़ जो होते हैं, यदि पथरीले पहाड़ है तो वहां पर लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती रहती है. जहां पर पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं पहाड़ पर, तो वहां लैंड स्लाइडिंग नहीं होती है. तो ये जो पेड़ पौधे हैं मटेरियल के लिए पूरकता का काम करते हैं, और ये जो मटेरियल ऑर्डर है it fulfills for the bio order. So there is a cycle, and every unit is engaged with the mutual fulfillment. तो एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं. इसमें जब हम तीसरे ऑर्डर को भी शामिल कर लेते हैं, एनिमल ऑर्डर को भी जब शामिल कर लेते हैं, तो देखते हैं कि जो बायो ऑर्डर है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फिजिकल ऑर्डर. Physical order is also somehow dependent on bio order, and when we see the animal order, it is based on the trees, plants, and the material. यानी कि हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे, इन सब चीजों पर एनिमल ऑर्डर डिपेंड करता है. और यदि हम ये जो एरो आप देख रहे हैं, हर ऑर्डर के एक दूसरे की तरफ एरो जो दिखाई दे रहा है, it shows the interconnectedness among the units. चौथा जब हम यहाँ पर देखते हैं, ह्यूमन ऑर्डर को देखते हैं, इन सारी चीजों को मिलाकर के, इन सारे ऑर्डर से जो यूनिट हैं उन सबको मिलाकर के हम नेचर कह रहे हैं. तो जब हम अपने रोल को देखने जाते हैं, ह्यूमन ऑर्डर को देखने जाते हैं, तो ह्यूमन ऑर्डर, ह्यूमन बीइंग इज trying to get the help from all the 3 orders of nature. हम लोग हवा, पानी, मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं. हम लोग बायो ऑर्डर का यानी कि प्लांट्स का और जानवरों की बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम लोग पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जानवरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन जब हमारे उनके प्रति फुलफिलमेंट की बात आती है, then there is a question mark. What we are doing for our nature, what we are doing for the bio order, प्लांट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, है? जबकि देखा जाए तो एक ह्यूमन बीइंग के पूरी लाइफ साइकिल में, एक ह्यूमन बीइंग के पूरी लाइफ साइकिल में उसको 4-5 पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक.
और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक पौधा भी नहीं लगाते, लेकिन नेचर ने ये सबको हमको प्रोवाइड करा रखा है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस नेचर को समझने के साथ इस सबके की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको मैं पूरा कर पाऊं। तो जब मैं अपने रोल को जब मैं देख पाता हूं, जब समझ पाता हूं कि जहां पर ये क्वेश्चन मार्क था इन सारे ऑर्डर्स में रिलेशनशिप को लेकर के, वो टिक मार्क में चेंज हो जाता है। यानी कि बाय अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप विद द नेचर आई कैन प्ले माय रोल टुवर्ड्स ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द नेचर। तो हम सब लोग एक जिम्मेदारी के रूप में, एक जिम्मेदारी समझते हुए उसके लिए काम कर सकते हैं। यदि हम इसको एक फिगर के रूप में देखें तो सबसे अधिक मात्रा में फिजिकल ऑर्डर इज अवेलेबल। फिजिकल ऑर्डर जैसे हवा, पानी, मिट्टी है, जो हमारी पृथ्वी है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में फिजिकल ऑर्डर है, यानी कि मटेरियल हम देखते हैं। उससे कम संख्या में या मात्रा में जो चीज उपलब्ध है दैट इज प्लांट्स। उससे भी कम देखें तो एनिमल ऑर्डर है और सबसे कम ह्यूमन ऑर्डर है। So these three arrows are showing that human being is totally dependent on all these three orders. We are totally dependent on animals, birds. We are totally dependent on plants. We are totally dependent on physical order. ठीक है? और यदि हम इस एग्जिस्टेंस को देखें तो ये जो फिजिकल ऑर्डर है ये सबसे पहले एग्जिस्ट करता था, करता है और करता रहेगा। तो जितनी भी फिजिकल ऑर्डर यानी कि मटेरियल जो थिंग्स हैं वो पहले से एग्जिस्ट करती थी, करती हैं और करती रहेंगी। इसके बाद जो प्लांट ऑर्डर है, प्लांट ऑर्डर उसके बाद में आया जब फिजिकल ऑर्डर में हवा, पानी, मिट्टी को के संयोग से कुछ संयोग बना जिससे एक प्लांट डेवलप हुआ और उस प्लांट के रिएक्शन से उसकी पत्ती नीचे गिरी, उसमें हवा, पानी, मिट्टी मिला तो सॉइल भी एनरिच हुई। उस सॉइल के एनरिच होने में छोटे छोटे जीव भी पैदा हो गए और टाइम के इस सीरीज में देखने को मिला कि उन्हीं छोटे छोटे जीव जंतुओं से बड़े जीव जंतु जो आज हम देख रहे हैं वो सब एनिमल ऑर्डर के रूप में हमको दिखाई देते हैं। हम लोग सबसे लास्ट में आए, लेकिन जिस तरह का पॉल्यूशन, जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन नेचर का हम आज कर रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, ड्यू टू लैक ऑफ रिलेशनशिप टुवर्ड्स द नेचर, ड्यू टू लैक ऑफ हार्मनी इन नेचर, हम देखें कि यदि नेचर में कुछ भी बदलाव आता है तो जो सबसे बाद में हम लोग आए थे सबसे पहले यहां से चले जाने वाले। लेकिन इसके बाद भी एनिमल ऑर्डर भी रहेगा, प्लांट ऑर्डर भी रहेगा, फिजिकल ऑर्डर भी रहेगा। यदि किसी आपदा से एनिमल ऑर्डर भी खत्म हो जाता है तो प्लांट भी बच जाएगा, फिजिकल ऑर्डर भी बच जाएगा। किसी तरीके से प्लांट भी चला जाता है तो फिजिकल ऑर्डर तो हमेशा रहेगा। तो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप between all these four orders, and I am seeing that the time is going to be over, so I am to say so many things, but due to the technical problems I could not start with the due time. तो मैं क्या मैम 5-10 मिनट और ले लूं? रितु मैम सर टाइम ओवर हो चुका है। नहीं, मैं सोच रहा था कि तो बस स्टार्टिंग ही था, तो यदि आप 10 मिनट मुझे So no matter, in future we will organize 8 days workshop. Okay ma'am. Yes sir. चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। यदि कोई क्वेश्चन, एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो लोग पूछ सकते हैं। I think whatever the question is being asked, that I was continuously typing and giving reply because of. Okay. So you have done my job. Okay. Yes. Okay. ठीक है, तो फिर मैं यहाँ रुकता हूँ इस बात के साथ कि कहीं तक जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े इस पूरे 4 सेशंस में, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिक जो जानकारी है वो सबको थोड़ी बहुत तो पहुंच गई होगी। लेकिन जैसा कि डॉक्टर किरण सिंह जी का एक मैसेज को, क्वेश्चन को देख रहा था कल, तो उन्होंने पूछा कि इस तरह की चीजें कहाँ, किस करिकुलम में हम लोग देखते हैं। तो ये यदि वर्कशॉप, जैसा आप कह रहे हैं कि वर्कशॉप आप अटेंड ऑर्गेनाइज कराते हैं 8 डेज वर्कशॉप, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे,
वो लोग उससे बेनिफिटेड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. It was really a wonderful session, and we all have learned a lot. Though we know very well that for this type of workshop, we need near about 5 days. Then everything will be clear. At least 5 days. Yeah, Yes. actually 5 days, but it's still At least. yeah, at least 5 days. Otherwise, Uh, 8 days we require. and the timing of these 5 days is from 9 to 6 p.m. 9 to 6 p.m. Yeah, sir. So whatever the message I am receiving from participants, they were giving a good session, informative session. They were saying, "Ki ma'am, it is really a wonderful session, and it is our request that you please share the PPT." Then I say, "Okay, I request to the experts. If they provide, then I will send you through mail after 2 days." Okay, ma'am. Please ask all the participants that all these things are available on the website of AKTU. So Okay, they sir. can download all the PPTs from there. Yeah, dear participants, this is a message of Dr. Yudhishthir sir that if you would like to collect these PPTs, then you please check the value education cell of AKTU or APJ Abdul Kalam University. There's Everything a is visible there. there is a link, Value Education Cell, on the AKTU's website. They can download all the audio and visual aids, visual items, and Yeah. these PPTs also. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now, just we know very well that we all are on learning stage. Until we are on this earth, we have to learn and practice continuously because learning never stops. With these words only, I would like to request Dr. Udit Mamodia from Department of Applied Science for a word of thanks. Good afternoon, everyone. I am honored and lucky to have the opportunity to give a vote of thanks on this special day. A warm and graceful afternoon to our most valued guest person, management committee, worthy teachers, and my most beloved children, as well as one and all listener over here. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this online webinar. I, Udit Mamodia, on behalf of Purnima Institute of Engineering and Technology, Jaipur, and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincere thanks to Almighty. On my own behalf, I extend a very hearty vote of thanks to Chief Guest for the webinar, Honorable Vice Chancellor Professor S.D. Charan, Bikaner Technical University. I extend a very hearty vote of thanks to webinar experts Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Head of Department Humanities, Hindustan College of Science and Technology, Mathura, and Dr. Yudhishthir Singh, Assistant Professor, Department of Humanities, Hindustan College of Science and Technology, Mathura, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. I must mention my deepest sense of appreciation, for I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to all new post barriers because of whom we are gathered here. As well, they have held a great promise and going to lead a life of commitment. I also extend thanks of all staff members of their embrace cooperation in the organization of this webinar. The wheels start rolling weeks ago. It required planning and bird eyes for detail. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of our college who know their job and result oriented. I can't thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on completion of tasks beyond their comfort zones. I especially thank the people who have been backbone of our webinar, Dr. Dinesh Goel, Director, PIT, Dr. Gautam Singh, Registrar, PIT, Dr. Sama Jain, HOD, Department of First Year, Dr. Ritu Shorian, Webinar Coordinator, who has not let us feel any to and pro problem. Our technical arrangement team stage setting and who have been the spreader of melodious tone, our technical agreement and press and media person. Once again, I want to state that we are also most grateful to speakers on this stage. We thank you for being with us this noon. It's been really a great pleasure. Thank you very much. Least but not the last, we are really very much owns to Almighty, and I continuously pray to the omnipresent and omniscient to provide such opportunity in plenty. Thanks a lot, one and only, directly or indirectly involved in this webinar. Jai Hind, Jai Jai Purnima Sanstha.
Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, all of you.